فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ زمانہ قدیم میں بار برداری کے لیے بیل گاڑیاں استعمال کی جاتی تھی اور ان بیل گاڑیوں کے ساتھ اکثر ایک کتا ہوا کرتا تھا جو عموماً بیل گاڑی کے نیچے چلا کرتا تھا اور اس کو یہ گمان رہتا تھا کہ وہی بنڈی پر لدے مال کو لاد رہا۔ ایسا ہی کچھ احوال تلنگانہ مینارٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی میں کام کرنے والے بے سود ملازمین کا ہے جو یہ سمجھ رہے کہ ادارہ انہی کی وجہ سے چل رہا۔ اعلیٰ عہدیداروں کی شخصی معاونت کے لیے خدمات پر حاصل کردہ لوگ اپنے ارباب کے ماتحتین کو احکامات صادر کرتے ہوئے دیکھ کر وہ خود بھی اپنے سے اعلیٰ رتبے کے عہدیداروں کو احکامات جاری کرنے لگے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتیں ماننے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی سے پیش آ رہے بلکہ ان کو دھمکیاں بھی دینے لگے ہیں۔ محکمہ پولیس کے ایک ملازم کو ٹمریز کی سیکریٹری کی شخصی معاونت کے لیے متعین کیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس ملازم کی خدمات کی محکمہ پولیس سے ٹمریز کو منتقلی ہی قانون کے مطابق نہیں کی گئی، مگر چونکہ وہ ٹمریز کی سیکریٹری کی معاونت کر رہا ہے اس لیے وہ خود کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ بیٹھا ہے۔ ملازمین اور دیگر پر رعب ڈالنے کے لیے یہ بھی باور کرواتا ہے کہ وہ رچا کنڈا پولیس کی اسپیشل برانچ میں اپنی خدمات انجام دے چکا ہے۔ ادارے کے امور میں اس ملازم کی مداخلت کچھ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اقامتی کالج و اسکول گرلز کی پرنسپال لاونیا نے سیکریٹری ٹمریز کو ایک وائس میسج بھیج کر ان کے پی اے محمد آصف حسین کی شکایت کی کہ وہ ارکان اسمبلی کے پی اے سے مل کر روزانہ ایک غیر اقلیتی طلبہ کو داخلہ دینے کی سفارش کر رہے اور ان طلبہ کی درخواستوں پر سیکریٹری ٹمریز کی دستخط بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خیرتآباد میں صداقت ناموں کی تصدیق کے سلسلے میں مصروف تھی کہ ایک رکن اسمبلی کے پی اے نے اسکول پہنچ کر عملے کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس نے ٹمریز کی سیکریٹری کے پی اے سے انہیں فون کروایا۔ لاونیا نے بتایا کہ آصف نے غیر پارلیمانی الفاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ فحش کلامی کی اور سیکریٹری سے ان کی شکایت کرتے ہوئے انہیں معطل کر دینے کی دھمکی دی۔ اس پرنسپال نے بتایا کہ وہی نہیں بلکہ کئی خاتون پرنسپلز آصف کی بدکلامی سے عاجز آ چکے ہیں اور اب ان میں برداشت و تحمل کا مادہ نہیں رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرنسپال کی جانب سے سیکریٹری کو وائس میسج روانہ کیے 3 دن گزر چکے ہیں مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الٹا اس پرنسپال کو RLC حیدرآباد وجے کمار کے نام سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ وہ سمیت 4 پرنسپلز کو شکایت اور تبادلوں کے معاملے میں ہیڈ آفس میں کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہیں دفتر میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ RLC کے نام سے جو پیغام انگریزی میں ارسال کیا گیا اس میں لغت کی کئی غلطیاں ہیں جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ریجنل لیول کنسلٹنٹ کی قابلیت کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکام کی روشنی میں تدریسی عملے کو صرف غیر تدریسی ایام میں غیر تدریسی اوقات میں ہی غیر تدریسی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے اسکول اور کالج کے پرنسپال کو ہی ہیڈ کوارٹر طلب کر لیا جانا سپریم کورٹ کے احکام کی سرِ خلاف ورزی ہے اور ارباب ٹمریز پر اس معمولی فرد کا کس قدر اثر رسوخ ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی ویمن سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ آبپاشی اور سول سپلائز کے وزیر کیپٹن اتم کمار ریڈی نے لوک سبھا میں ان کے ذریعے پیش کردہ مرکزی بجٹ 2024-25 میں تلنگانہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے پر وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن کی سخت مذمت کی۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بجٹ سیاسی طور پر محرک ہے اور اس کا مسودہ عوام کے لیے نہیں بلکہ بی جے پی کے اتحادیوں JDU اور TDP کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جہاں بہار کو 41,000 کروڑ روپے کی مالی امداد دی گئی، آندھرا پردیش
प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए और दीगर इमदाद मिली। बशमूल पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड्स। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ज़रिए इक़्तिदार रियासतें बिलखुसूस तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद ये 11वां बजट था, लेकिन नई रियासत मरकज़ की तरफ से नज़रअंदाज रही। 2014 के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के उन्वान से एक अलहदा बाब बजट में शामिल किया गया, लेकिन फाइनेंस वजीर ने 58 सफ़हात और 14,692 अल्फाज पर मुश्तमिल अपनी पूरी तकरीर में लफ्ज़ तेलंगाना का जिक्र नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की मजम्मत की कि उन्होंने अपने बजट तकरीर में आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के बारे में तेलंगाना का जिक्र मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अगरचे हम मरकज़ की तरफ से आंध्र प्रदेश को खुसूसी फंड्स देने के खिलाफ नहीं, लेकिन हम तेलंगाना के तई इसके इम्तियाजी सलूक की सख्त मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना के वज़रा के एक वफ्द ने गुज़िश्ता 7 महीनों में तमाम वज़ारतों को मुख्तलिफ दरख्वास्तें पेश की और इसके लिए फंड्स का मुतालबा किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने पोलावरम प्रोजेक्ट को फंड देने का वादा किया, लेकिन पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए फंड्स देने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। उन्होंने कहा कि हमें अब भी उम्मीद है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फराहम करेगी, जैसा कि उस वक्त के मरकजी वजीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमें यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने वजीर खजाना के इस दावे का मजाक उड़ाया कि बीजेपी हुकूमत आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में वादों को पूरा करने के लिए ठोस कोशिशें कर रही। तेलंगाना के लोग पिछले 10 सालों से बीजेपी हुकूमत के एपी तंजीम नौ एक्ट में किए गए वादों को पूरा करने का इंतजार कर रहे। काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयाराम में स्टील फैक्ट्री, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स, हाई स्पीड के लिए फंड्स। उन्होंने सवाल किया कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश खुसूसी फंड्स के मुस्तहिक़ हैं तो फिर तेलंगाना को इस तरह के सलूक से क्यों महरूम रखा जा रहा। हालत नशे में सरकारी स्कूल का एक हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले मुलुगु के धर्मापुरी गांव में पेश आया। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फॉर्म पर गजेटेड हेडमास्टर के दस्तखत के लिए जब मुकामी अफराद स्कूल पहुंचे तो उन्होंने इस हेडमास्टर को हालत नशे में देखा। उन्होंने जब फॉर्म पर दस्तखत करने की उससे ख्वाहिश की तो उसने इनकार कर दिया और मुकामी अफराद से उलझ पड़ा। मुकामी अफराद ने इसकी वीडियो लेते हुए वायरल कर दी। मुकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ఏ అవసరం మీకు మాకు అవసరం మేము చేసిన మీరు స్కూల్లో పని చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మా అవసరం పని చేయకుండా కూర్చుంటున్నారు. మీరు ఏమన్నారు మురుగుపోయింది అన్నారు. మీరు ఎందుకు అబద్ధం అన్నావు? బాబు నేను మీటింగ్ పోయినా మీటింగ్ 10 నిమిషాల మీటింగ్ అయిపోయింది. మీకు 10 నిమిషాలు మీటింగ్ ప్లీజ్. అక్కడ చెప్పు చెప్తాగా ఆఫీసర్. सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मरकजी बजट पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना की जिद दिखाई गई। रियासत तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की गई है। तेलंगाना के लोगों ने बीजेपी के 8 मेंबरान असेंबली जिताए। तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया गया। मुस्तकिल रिहायशियों के लिए गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। देखिए सीपीआई के कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। ఆంధ్ర బీహార్ రాష్ట్రాలకు ప్యాకేజ్ ఇస్తే హర్షించదగ్గ పరిణామే కానీ తెలంగాణకు ఎందుకు ముండి చెవి చూపించారనే ప్రశ్నిస్తున్నాం. అలాగే పెన్షనర్లకు లేకుంటే స్టాప్ రేటు లేకుంటే ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని కూతూ మంత్రంగా ప్రవేశపెట్టిన అసలు నిత్యావసర ధరలు గ్యాస్ ధరలు అన్నీ పెరిగిపోయి పెనుభారంగా తయారైనటువంటి పరిస్థితిలో వాటి గురించి ఏం చేయలేదు. తెలంగాణ కోసం కనీసం ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు కూడా ఇవాళ పూర్తిగాక ఇబ్బందులు పడుతున్నది. ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు కూడా జాతీయ హోదా కల్పించలేదు. ఇలాంటి కానీ ఏ ఒక్క రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ విభజన హామీలు ఏదో ఒకటి అమలు కాలేదు. దీన్ని తీవ్రంగా నిరసించాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం బీజేపీకి తప్పనిసరిగా మరి
వాత బిట్టక తప్పదు తెలియపరుస్తాను. प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन दाना किशोर ने सेक्रेटरिएट में जीएचएमसी वेटरनरी डिपार्टमेंट ब्लू क्रॉस और दीगर जानवरों की फलाही तंजीमों के अहदेदार के साथ एक आला सतह मीटिंग की ताकि कुत्तों की इलानत के मसले पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान और ब्लू क्रॉस के मेंबर पर मुश्तमिल एक एपेक्स कमेटी के क़याम का ऐलान किया और उन्हें कुत्तों की लानत को रोकने और कुत्तों के काटने के वाक़यात पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की हिदायत की। उन्होंने इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मुहिम चलाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि रिहायशी फलाही अंजुमनों, कच्ची आबादियों की सतह के फेडरेशनों और स्कूल के बच्चों को कुत्तों के रवैये के बारे में आगाही फराहम की जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि रियासत के तमाम शहरी बल्दियाती इदारों में जल्द अज जल्द जानवरों की देखभाल के मराकज कायम किए जाएं। तमाम सैनिटरी जानवरों और जवानों, फील्ड सैनिटरी असिस्टेंट, ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माँ के ग्रुपों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम अगले हफ्ते के अंदर जीएचएमसी के हर वार्ड में मुनक्किद किया जाना चाहिए ताकि गलियों में कुत्तों की लानत के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इसी तरह का तरबियती प्रोग्राम रियासत के तमाम यूएलबी में भी मुनक्किद किया जाना चाहिए। जीएचएमसी के अहदेदारों से ये भी कहा गया है कि वो आवारा कुत्तों के लिए पायलट बुनियादों पर शहर में 2 शेल्टर होम कायम करें। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में माली साल 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की इख्तिसादी तरक्की आलमी सतह पर एक चमकता हुआ सितारा बनी हुई है और आने वाले बरसों में भी इसी तरह बरकरार रहेगी। हिंदुस्तान की अफरात-ए-ज़र कम और मुस्तहकम बनी हुई है और 4% हदफ की तरफ बढ़ रही और कवर महंगाई 3.21 और 1% पर है। सीतारामन ने अपनी बजट तकरीर शुरू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर अपने एतमाद का इयादा किया है और उसे तारीखी तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि इख्तिसादी तरक्की के सामने बहुत से बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और इन चैलेंजेस से महंगाई में इजाफे का खतरा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि उबरी बजट में जिक्र किया गया, हमें 4 मुख्तलिफ ज़ातों, गरीबों, ख्वातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। किसानों के लिए हमने वादा पूरा करते हुए तमाम बड़ी फसलों के लिए आला कम अज कम इमदादी कीमतों का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लागत पर कम अज कम 50% मार्जिन के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दी गई, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। वजीर खजाना ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के मरकजी अखराजात के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार, हुनरमंदी और दीगर मौके फराहम करने के लिए 5 स्कीमों और इक़दामात के वज़ीर आज़म के पैकेज का ऐलान करते हुए खुशी हो रही। इस साल हमारे पास तालीम, रोजगार और हुनर के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का इल्तिजाम है। उन्होंने कहा कि 32 इलाकाई और बागबानी फसलों की नई 109 ज्यादा पैदावार वाली और मौसमियाती लचकदार अक़साम किसानों को काश्त के लिए जारी की जाएंगी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को कुदरती खेती में शामिल किया जाएगा, जिसकी मदद से सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग होगी। उन्होंने कहा कि इस साल ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अफरात-ए-ज़र कम, मुस्तहकम और 4% के हदफ की तरफ बढ़ रही। शरीक महंगाई यानी नॉन फूड और नॉन फ्यूल 3.1% पर बरकरार रही। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं कि खराब होने वाली अशिया की सप्लाई मुनासिब तरीके से बाजारों तक पहुंच सके। जैसा कि अबूरी बजट में जिक्र किया गया, गरीबों, ख्वातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर खजाना ने कहा कि हमारी हुकूमत वज़ीर आज़म के पैकेज के हिस्से के तौर पर रोजगार से मुतल्लिक मुराद के लिए 3 स्कीमें नाफिज करेगी। ये EPFO में इंदराज पर मबनी होंगी और पहली बार काम करने वाले कारकुनों की शनाख्त और मुलाजमीन और आजरों की मदद पर तवज्जो मरकूज करेंगे। तालीमी कर्जों पर उन्होंने कहा कि हुकूमत घरेलू इदारों में आला तालीम के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्जों के लिए माली इमदाद फराहम करेगी। पार्लियामेंट में एक तरफ मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारामन बजट पेश कर रही थीं और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में कोहराम वाले हालात पैदा हो रहे थे। जैसे जैसे वजीर मालियात की बजट तकरीर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शेयर मार्केट में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी और आखिर में नतीजा ये हुआ कि BSE का अहम इंडेक्स सेंसेक्स तकरीबन 1200 पॉइंट्स तक गिर गया। सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी पर भी मरकजी बजट 2024 का मनफी असर पड़ा है। कारोबारी सेशन के दौरान निफ्टी 1% की गिरावट के साथ कारोबार
कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा। माहिरीन का कहना है कि आम बजट शेयर मार्केट के लिहाज से मुज़िर साबित होने वाला है और शेयर बाजार में मजीद बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। निफ्टी जहां 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा, वहीं सेंसेक्स में फिलहाल 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही। मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जबकि SBI के शेयर में तकरीबन 2% और LNT के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अहम इंडेक्स सेंसेक्स तकरीबन 1200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 79,224.32 पॉइंट्स पर आ गया। ये इंडेक्स सुबह 80,724.30 पॉइंट्स पर ओपन हुआ था, जो पहले ऊपर चढ़ा और फिर जब गिरना शुरू हुआ तो नीचे की तरफ ही बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 हाथों, 4 पैरों और 2 मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया। नवमौलूद को देखकर वालिदैन समेत नर्स भी हैरान रह गई। अजीबुल खलकत बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। उसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ हॉस्पिटल में जमा हो गई। लोग हर तरह की बातें कर रहे। ये वाकया सीतापुर जिले के रेवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है, जहां एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब ये पता चला कि उस बच्चे के 4 हाथ, 4 टांगे और 2 मुंह हैं। कुछ ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और नौज़ायदा बच्चा पूरे इलाके में मौजू बहस बन गया। उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। रात को हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स राजकुमारी ही मौजूद थी। उनके मुताबिक नवमौलूद बच्चा दूध पीने के काबिल नहीं था, इसके लिए उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाने वाला था, लेकिन ये चंद घंटों में ही फौत हो गया, रेफर किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतापुर जिले के केरतपुर गाँव के रहने वाले रामपाल की बीवी पूनम को डिलीवरी के लिए रेवान के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में स्टाफ नर्स राजकुमारी ने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई, न सिर्फ हॉस्पिटल का अमला बल्कि नवमौलूद के घर वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि 2 मुंह, 4 हाथ और 4 टांगे थी। पहली बार बच्चे को देखकर माँ भी डर गई, लेकिन बच्चा जिंदा था और सांस ठीक से ले रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में शरीक करके मजीद इलाज शुरू कर दिया गया। स्टाफ नर्स राजकुमारी के मुताबिक जब वालिद बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर लेकर आए तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए कमरे से बाहर गई थी, ये देखने के लिए कि एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया। बच्चा रात तक दूध पीने के काबिल नहीं था। पैदाइश के 5 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद घर वालों ने उसकी आखिरी रसूमात अदा की। हिज़्ब इख्तिलाफ ने आम बजट 2024 को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि ये मोदी हुकूमत का कुर्सी बचाओ बजट है और उसे PM सरकार बचाओ स्कीम कहना चाहिए। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा है कि अहम मसाइल का जिक्र तक नहीं किया गया। शशि थरूर ने कहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को सियासी वजूहात की बिना पर मुतमईन किया गया, लेकिन मुल्क में और भी रियासतें मौजूद हैं। राहुल गांधी ने लिखा, ये कुर्सी बचाओ बजट है जिसमें हलीफों को खुश किया गया और AA यानी अशरफिया को फवायद दिए गए, लेकिन आम हिंदुस्तानियों को कोई राहत नहीं। ये बजट कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर और साबिका बजटों की कॉपी पेस्ट नकल है। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी हुकूमत का नकलची बजट कांग्रेस के न्याय इंसाफ के एजेंडे को दुरुस्त तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत का बजट अपने इत्तेहाद के हलीफों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि NDA बचा रहे। ये मुल्क की तरक्की का बजट नहीं बल्कि मोदी हुकूमत बचाओ बजट है। हिंदुस्तानी बहरिया का एक जंगी जहाज जो मुंबई में नेवल डॉक यार्ड में ज़ेर मरम्मत था, इसमें आग लग गई। बहरिया ने कहा कि एक जूनियर मल्लाह लापता है और बचाव टीमें उसे तलाश कर रही। दीगर तमाम अरकान अमले का पता चल चुका है। मल्टी रोल बहरी जहाज INS ब्रह्मपुत्रा में उस वक्त आग लग गई जब मुंबई नेवल डॉक यार्ड में उसकी मरम्मत हो रही थी। बहरिया ने बताया कि अब ये जहाज क्रोट पड़ा हुआ है और बहरिया ने अपने एक बयान में कहा है
है कि जहाज के अरकान अमले ने नेवल डाक यार्ड के आतिश फरो अमला दीगर जहाज़ों के अमले की मदद से आग पर काबू पा लिया। इलावाज़े जहाज की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल कर ली गई है कि आया इसमें कहीं और आग लगने का खतरा तो नहीं। बहरिया ने जहाज के एक जानिब झुकना शुरू हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सीधी पोजीशन में नहीं लाया जा सका। जहाज अपने बर्थ की तरफ से मजीद झुकना शुरू हुआ और फिलहाल एक जानिब पड़ा हुआ है। तमाम अरकान अमले की गिनती की जा चुकी है। सिर्फ एक जूनियर मल्लाह का पता नहीं चल सका जिसकी तलाश जारी है। हिंदुस्तानी बहरिया ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही एक्शन थ्रिलर वार 2 के दूसरे शूटिंग शेड्यूल का 18 अगस्त से मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर आगाज होगा, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी हिस्सा लेंगे। स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत बनने वाली यश राज फिल्म्स की इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवान ने लिखा है। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की वार का सीक्वल होगी, जहां वार को 170 करोड़ में बनाया गया था। वहीं अब यश राज वार 2 पर 200 करोड़ का बजट लगा रहे। फिल्म में ऋतिक रोशन मेजर कबीर धलेवाल का ही किरदार निभा रहे। वहीं जूनियर एनटीआर कियारा अडवाणी, आशुतोष राणा, जॉन अब्राहम और अनिल कपूर के किरदारों को राज में रखा गया। इसके अलावा यशराज फिल्म से मुतालिक एक और धमाका उस वक्त करने वाले हैं जब फिल्म तकमील के मराहिल में होगी या इसके रिलीज से आइन कबल। बावसूख जराये के मुताबिक इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान भी मेहमान किरदार में दिखाई देंगे। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के मुताबिक वो अपनी इस फिल्म को 14 अगस्त 2025 में रिलीज करने का प्रोग्राम बना रहे। ये बताते चले कि जूनियर एनटीआर ने हाल ही में अपनी तेलुगु फिल्म देवारा की शूटिंग हैदराबाद में मुकम्मल की है। कोरटला शिवा के डिरेक्शन में बन रही इस एक्शन फिल्म में जानवी कपूर हीरोइन का किरदार निभा रही। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि सऊदी अरब का शहर अल अहसा सबसे ज्यादा गर्म रहा, जबकि सबसे कम दर्ज हरारत अल सौदा में रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता को सबसे ज्यादा दर्ज हरारत रियाज, दमाम और अल अहसा में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 47 सेंटीग्रेड था। अल कैसोमा और हफरल बातिन में 46 सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। मक्के मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा में दर्ज हरारत 44 सेंटीग्रेड रहा। सख्त मौसम के बावजूद मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन मौसम की सख्ती खेलते हुए उम्रा मुकम्मल करके ज़ियारत मदीना मुनव्वरा की सादत हासिल कर रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।